Welcome again here. You are watching Chuck Tutorials and today's topic is enzymes. तो सबसे पहले बात करेंगे definition of enzymes. तो सबसे पहले enzymes are the proteinaceous biocatalyst. Not only proteinaceous, they may be nucleic acids biocatalyst which alters the rate of reaction. Alters, we can say the decrease or increase in something. That means alters. But in case of enzymes, this alters is enhance. So enzymes are the proteinaceous biocatalysts which alters the rate of reaction. रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, टाइम को कम कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और रिएक्शन को बहुत जल्दी कंप्लीट करेगा. उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन. सो classification of enzymes based on reaction catalyzed, presence or absence at a given time, place of action and a clinical importance. तो सबसे पहले reaction catalyzed, the classification of enzymes on the basis of reaction catalyzed. This is the most important classified group of enzymes. So let's start now. The classification of enzymes on the basis of reaction catalyzed. इसके बेसिस पे हमारे पास 6 तरह के एंजाइम्स होते हैं. We have 6 types of enzymes or 6 group of enzymes on the basis of reaction catalyzed. इन 6 ग्रुप्स को हम एक बहुत ही सिंपल ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं. कैसे? हम एक वर्ड लिखते हैं O T H L I L. अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो OTHLIL क्या बनेगा? ऑथिल. सो द O stands for oxidoreductase. T stands for transferase. H for hydrolases. L for ligase. I for isomerase, and the another L stands for ligases. So we have 6 group of enzymes. We can learn these groups by simple trick, that is Othel, or we can remember these 6 group by making another sentence, that is over the hill. एंजाइम्स को याद करना है, किसी भी तरह कर सकते हैं. ऑथलीन, ओवर द हिल. O stands for oxidoreductase, T for transferase, H for hydrolase, I for isomerase, and the 2 L's stands for lyase and ligase. So now the oxidoreductase. Oxidoreductase basically helps in, or it brings out the redox reactions. It helps in the alteration of redox reactions. Reduction plus oxidation. Oxidoreductase brings about the redox reactions. Transferase, it helps in the transfer of molecules. It alters the transfer rate of molecules. Hydrolases, it helps or it brings about the breakage of bond with addition of water. अगर एक हमारे पास में कोई मोलिक्यूल है जो कि 2 एटम्स से मिलके बना है, इसका बॉन्ड ब्रेक करना है, और अगर प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स उसमें यूज हो रहा है, तो इसका बॉन्ड तो ब्रेक होगा प्लस एडिशन ऑफ वाटर. सो दिस इज हाइड्रोलाइसिस. आफ्टर दैट ligase, it helps in the joining of 2 molecules or 2 atoms. फॉर एग्जांपल DNA ligase, ये तो सबने सुना ही होगा. DNA ligase, ये 2 DNA फ्रेगमेंट्स को अगर हमें जोड़ना हो तो एक एंजाइम आता है DNA ligase. इसको यूज किया जाता है. DNA ligase, it helps in joining of DNA fragments. After that isomerase. अब हम सबसे अच्छा एग्जांपल isomerase का लें. फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज. हम क्रेब्स साइकिल में और इसमें ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं. हमारी बॉडी में मेन कंपोनेंट है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज अगर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में, both have same chemical formula, both are the isomers of each other. तो यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया. यहाँ जो एंजाइम यूज होगा उससे हम कहते हैं आइसोमरेज. इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ केमिकल कंपाउंड इनटू आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. आफ्टर दैट लाइएजेस.
लाइज, किसी भी चीज का लाइसिस मीन्स ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। तो लाइज बेसिकली अगर हमने यहाँ बात की थी द बॉन्ड ब्रेक हो गया बट एडिशन ऑफ वाटर, तो हाइड्रोलिसिस। आफ्टर दैट लाइज, दिस इज आल्सो द बॉन्ड ब्रेकेज बट विदाउट एडिशन ऑफ water or in absence or addition of water. So these are the basically 6 further groups of enzymes that comes under reaction catalyzed. After that we have the next class. So discuss the classification of enzymes on the basis of presence or absence of enzyme at a given time. जहाँ जरूरत है, जरूरत नहीं है, या किस तरह सेल में वो प्रिपेयर होता है, उसके बेसिस पे कैसे एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। हमारे पास 2 फर्दर कैटेगरीज हैं। एक है इंड्यूसिबल एंजाइम्स एंड द सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स, inducible enzyme, these are those enzymes which are prepared or synthesized by the cell whenever they required. एक सेल है, इस सेल को किसी एक एंजाइम की जरूरत है, जब इसको जरूरत होगी वो तभी उसको बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। So these are those enzymes which are synthesized by the cell whenever they required. So examples, enzymes involved in यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में जितने एंजाइम यूज होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। तो द कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सेल में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन सेल। एग्जाम्पल बहुत इजी है। एग्जाम्पल, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन enzymes involved in glycolysis। glycolysis तो सबने सुना ही होगा। glycolysis में जो enzymes involved होते हैं that are known as constitutive enzymes, for example isomerase, hexokinase etc. अब इसके बाद बात करते हैं the next classification of enzymes। तो अगर हम बात करें classification of enzymes on the basis of place of action, वो कहाँ वर्क करते हैं, कहाँ बनते हैं, तो इसमें जनरली वी हैव अगेन 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, दैट इज फर्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड द सेकंड वन इज एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। नाउ द इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेल है, इसमें इस सेल ने एक एंजाइम को प्रोड्यूस किया और इसी में इस एंजाइम को यूज कर लिया। तो दीज एंजाइम्स आर नोन एज इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। एग्जाम्पल, ऑल द एंजाइम्स यूज्ड इन सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल TCA साइकिल में जितने भी एंजाइम यूज होते हैं वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। आफ्टर दैट एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, इसने एक एंजाइम को प्रोड्यूस किया और किसी दूसरी जगह इस एंजाइम को वर्क किया। इस एंजाइम को इस सेल ने प्रोड्यूस किया और इसका जो वर्क था वो किसी दूसरी जगह जाके हुआ, इसका एक्शन। सो दीज एंजाइम्स आर नोन एज एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो किसी सेल में बनते तो हैं, कोई सेल उन्हें प्रोड्यूस तो करती है, बट उनका जो प्लेस ऑफ एक्शन है वो दूसरा है। सो दीज आर नोन एज एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, the classification of enzymes on the basis of clinical importance.